Good morning, students of class 10th. Good morning. As you know that the topic of reported speech is still continuing, and yesterday the introduction will be taught by me yesterday. तो आज हम आपको बताएंगे कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले दो चीजें देखनी पड़ती है। ठीक, मैं आपको स्पेशली ग्रामर हिंदी प्रोनाउंसिएशन में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा समझने में आती है। ग्रामर को यदि हिंदी बेस में समझाया जाए तो ज़्यादा समझ में आता है। इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द गिवन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। यदि आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपके रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस के टेंस भी पास्ट टेंस में कर दिए जाते हैं। ठीक, और इन सम केसेस we don't need to change types of sentence in other cases, कि हमें किन्हीं मामलों में हमें टेंस बदलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में हो, वो आपको वो कंडीशंस बता दी जाएंगी। तो फर्स्ट, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस असर्टिव है तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है से टू, सेज टू, सेड टू, टेल, टेल्स, टोल्ड में चेंज कर दिया और कंजक्शन आपकी आती है when the given sentence in reported speech is interrogated, then say, sage, said must be changed into ask, asks, asked. You can also change into inquire, inquires, inquired in place of ask, asked. And in this condition, as you know, there are two types of interrogative. If the given interrogative sentence is type questions, then you must use if as conjunction, if or whether, and when the given interrogative sentence is WH type, then you should use question word as conjunction. Okay, imperative sentence, say, said, sage, said must be changed to according to the expression, order, request,
कंजक्शन टू। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, से, सेज, said, must be changed into, exclaim, exclaims, exclaimed, conjunction that. And remember, we have to also use according to the feelings, such as if the given exclamatory sentence has interjection which shows sorrow, then we must use expression with reporting verb. यदि जो इंटरजेक्शन दिए जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, उसके सेंस को बरकरार रखने के लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब के साथ उस इंटरजेक्शन की मीनिंग को विथ प्रीपोजिशन की सहायता से हमें लिख देना चाहिए। जैसे एलास आता है तो एलास सोच सोरो, तो एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन्ड विथ सोरो, with happiness, with praise, with surprise. Optative, say, sage, said, said, must be changed into, bless, wish, curse, dot dot dot, it is. Conjunction that. The given table is very helpful for changing indirect narration, मतलब direct narration into indirect narration about 95% sentences. आपको कम से कम 95% जो सेंटेंस है उनको आपको इनडायरेक्ट में बदलने में ये जो टेबल है ये आपकी सहायता करेगी। कैसे? आप You may capture this image by screenshot. आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसे आप कैप्चर कर सकते हैं। Example, Rohit says to me, comma inverted comma, Mohit plays daily. तो रोहित
says to me, comma inverted comma, Mohit plays daily. Indirect. Rohit tells me that Mohit plays daily. Rohit said to me, comma inverted comma, Mohit plays daily. Now you can see that the given sentence in first sentence या first example is in present tense and second in past tense. तो जो प्रेजेंट टेंस में है तो अपनी इंडायरेक्ट में बदलती समय इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, आपका प्लेज का प्लेज ही रहेगा। तो जब पास्ट में है तो आपके अंदर का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस का जो टेंस है वो भी पास्ट हो जाएगा। टोल्ड मी दैट Mohit played daily. Okay. Now, if the given sentence in reported speech is assertive, but reporting verb doesn't have its object. यदि दिया गया सेंटेंस असर्टिव हो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो रोहित सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहित प्लेज daily. Rohit says. In this case, we must not change says into tells because it doesn't have its object. क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम सेज का टेल्स नहीं कर सकते। दैट मोहित रिपोर्टेबल प्रेजेंट में है इसलिए प्लेज का प्लेज ही रहेगा, प्लेज डेली। ओके, नेक्स्ट मदर said to me comma inverted comma ऋतु ऋतु अब जो एग्जाम्पल है वो इंटायर
सुपरलेटिव का हो, एस्ट्रोटाइप। डज ऋतु सिंह मदन ने मुझसे कहा डज ऋतु सिंह, क्या ऋतु गाती है? मदन said to me, comma inverted comma, what does Ritu sing? What does Ritu sing? ऋतु क्या गाती है? First, in above example, reported speech has SO-type questions, and the example which has been written beneath, what does Ritu sing, जो नीचे दिया गया है वो आपका WH टाइप क्वेश्चन है। रिपोर्ट अगर पास्ट में है तो अंदर भी पास्ट हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका पास्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट एंड डायरेक्ट। मदन asked me if, आप वेदर का भी यूज कर सकते हैं, if ऋतु, यहां से मतलब मैनी स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से कई छात्र गलतियां कर देते हैं क्योंकि वो यहाँ पर डिस्पेंडेंट कर देते हैं। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एज एन असर्टिव सेंटेंस, ओके, फॉलोइंग जनरल रूल्स। ऋतु सिंह का सिंह पास्ट डायरेक्ट। मदन asked me what, एस्ट्रोटाइप है तो जो भी क्वेश्चन वर्ड आपको दिया है उसी का आप कंजक्शन बना दें। व्हाट ऋतु सेंड, ओके, व्हाट ऋतु सेंड। और it doesn't matter in this case reporting verb has its object or not, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि आपका इन्वर्टेड रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, फिर चाहे आपका रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क और आस्क्ड में बदल सकते हैं। Next example for exclamatory sentence. Raju said to Sita, comma inverted comma, alas, alas, Ram has failed, मतलब राजू ने सीता से कहा एलास राम हैज फेल्ड, कि
बड़े दुख की बात है, राम फेल हो गया। तो इसमें एलास एक इंटरजेक्शन है, मैं सोच सौरव राजू, आप जो टेबल दी है, टेबल में आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रो को देखें। एक्सक्लेम ऑब्जेक्ट आएगा सीता, विथ सौरव, विथ सौरव, दैट राम, पास्ट परफेक्ट में होगा, हैड फेल्ड। और sometimes the exclamatory sentence are given which seem incomplete sentence but they are complete। कभी कभी क्या होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे दिए जाते हैं कि वो हमें इनकम्प्लीट लगते हैं, अधूरे लगते हैं, लेकिन वो पूरे होते हैं। हमें पूरा करना पड़ता है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा what no how beautiful, वह कितनी सुंदर है। तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन आपको खुद सोचना पड़ेगा। ही एक्सक्लेम, हाउ और व्हाट सरप्राइज शो करते हैं। यदि आपको लिखना हो लिख दो, नहीं लिखना हो नहीं लिखो। एक्सक्लेम में वैसे ही ऑलरेडी सरप्राइज होता है। विथ सरप्राइज, विथ सरप्राइज दैट सी, हम सब्जेक्ट सोच लेंगे, सी वॉच वेरी ब्यूटीफुल। Okay, now assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, such types of sentences are for changing into indirect narration. All these rules have been cleared. Tomorrow I will teach you if the given sentence is optative sentence, how can we change into indirect narration। and आप गौर करोगे कि हमने अभी आपको पर्सनल प्रोनाउंस चेंज करने नहीं बताए। तो पर्सनल प्रोनाउन के अलग रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम कल डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो जो लेक्चर है वो आप अटेंड करना, मतलब मिस ना करें। आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखें और जो आपकी ग्रामर है होली फेल, उसकी जो एक्सरसाइज है उसको करते रहें। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखें, आपकी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ओके, गुड डे, थैंक्स।